Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I, Ms. Sadia Iqbal, on behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to ABSEC's online support program. As you all know that this is our 12th week going on, and today is Friday. So let us get started with today's lecture. Today, inshallah, we will be completing exercise 3.2, right? And then we will be starting exercise 3.3, which is a very important exercise. 3.3, 3.4, extremely very important exercises, even for long, right? 3.2, you always get one short question from 3.2, one short question from 3.1, and 3.3, 3.4, they are very important for long question. Anyways, let us get started. Today, inshallah, you'll be able to again apply, you'll be applying rules and formula for integration to find the indefinite integrals like for 3.2, and then we will be learning about substitution method too, right? We will be learning about substitution method in the integration to do exercise 3.3. Right, there would be mixed ability questions, like there would be some questions in which substitution would be mandatory because we will not be able to solve those questions without substitution method, but there would be some questions which could be done both ways, like with substitution or without substitution. So today we will be doing, inshallah, firstly these questions, three parts of exercise 3.2 which were left, and then we will be doing these questions only of exercise 3.3. So let us get started. Okay, firstly, rules of integration. If you remember, I told you about rules of integration in the previous two lectures. Let me make you recall those rules to you. Okay, if you remember, first rule was, if there is some power of the function and the derivative of the function which is given to you is being present with the function, then all you have to do is you will be adding 1 in the power and dividing this by, with the same term, plus c. दिस वॉज रूल नंबर 1. याद है, अगर इसके साथ कोई फंक्शन है और इसकी कोई भी पावर है होल में, ये इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या था कि इसकी पावर में हम 1 ऐड करते थे और उसी से उसको डिवाइड करके प्लस सी. ठीक है, दिस वॉज रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम ही था, बट उसमें योर फंक्शन वॉज विद द पावर वॉज इन द डिनोमिनेटर और ऊपर उसका न्यूमिनेटर मौजूद था, सॉरी डेरिवेटिव मौजूद था. देन ऑल यू हैड टू डू इज़ was you had to bring this to the numerator, like f of x whole raised to the power n into f dash of x dx. अब ये ऊपर आ गया तो ये दिस वुड बिकम -1 माइनस n. अब चूंकि इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ऐड अप 1 इन द पावर और उसी से आपको डिवाइड करना है, यानी -n+1 डिवाइडेड बाय -n+1 हो जाएगा. बट इस क्वेश्चन में इट वॉज मैंडेटरी दैट n शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ठीक है, दिस वॉज रूल नंबर 2. और रूल नंबर 3 अगर आपको याद हो, वो क्या था कि न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव ही मौजूद है नीचे वाले फंक्शन का, बट उसकी कोई पावर शावर नहीं है, इसकी कोई पावर नहीं है, होल पावर कोई कुछ भी नहीं है. देन ऑल यू हैड टू डू इज़ नीचे वाले का चूँकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, देन नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस सी, और इसको मॉड में शो करना था क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यूज़ इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक हो गया. सो अब हम चलते हैं अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ. ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर लेफ्ट? इफ़ यू रिमेंबर, वी वर डन अप टिल हियर. ये 3 क्वेश्चंस रह गए थे ये. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. इजी क्वेश्चंस हैं बट इंपॉर्टेंट भी हैं. 12th पार्ट. ओके, लुक एट द क्वेश्चन. यू कैन सी प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा. रिमेंबर दैट. और वो क्या फॉर्मूला था? क्या था वो? दैट साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, चैप्टर नंबर 10 का. सो आई एम गोना अप्लाई द सेम फॉर्मूला हियर. माई अल्फ़ा वुड बी दिस, माई बीटा वुड बी this, and if you can see 2 is missing from the question. So what am I going to do? Firstly, I'll be multiplying the question, multiplying and dividing with 2. Okay, now I'm going to apply that formula. अभी हम इंटेग्रल को नहीं छेड़ रहे, वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग द फंक्शन, तो इट वुड बी सी 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा. तो क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब 3x + 2x माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी 3x - 2x. दोबारा से लिखें इसको, 1/2 बीइंग आउटसाइड. ओके, अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ. इट वुड बी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा
3x plus 2x minus sine of alpha minus beta into dx. ठीक है जी. Now what? 1 by 2. Okay, now look at this and this. What would this be? It would be, अच्छा, integral would be still be there. Sine of 5x minus sine of x, ठीक है, whole into dx. अच्छा, now one thing boys and girls, you have to keep this thing in your mind. Still I haven't done anything with the integration yet. अभी मैं सिर्फ simplification की है. Now I can take the integral. Why? Because you know I know what is the integral of sin 5x. Initially मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैं उसको क्या इंटीग्रेशन करती. You know, you haven't learned about the product rule yet. और वैसे भी ये उस तरह से सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकता था क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. यू विल लर्न अबाउट दिस थिंग इंशाल्लाह इन डिटेल इन एक्सरसाइज 3.4. yes, but right now look at this, sin of 5x. now you know the integral है ना. what is integral of sin of x? क्या होता है? माइनस कॉस x. अच्छा, अगर आपके पास फंक्शन है सपोज sin of 5x, तो इसका इंटेग्रल क्या होगा? माइनस कॉस ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव हम इसमें डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में. ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दैट. सो इट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 2. अब मैं इंटेग्रल अप्लाई करने लगी हूँ अलग अलग. इंटेग्रल ऑफ साइन 5x माइनस इंटेग्रल ऑफ साइन x. ठीक है जी. लेट अस अप्लाई इट 1 by 2. फर्स्टली लेट अस फाइंड इट्स इंटेग्रल. सो इट वुड बी माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस इट्स इंटेग्रल वुड बी माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 1. ना भी लिखे तो ठीक है. नाउ दिस इज माई आंसर. इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ. So this would become positive. It would become cos of x divided by 2 minus cos 5x divided by 10. ये 2 अंदर multiply करा लिया आपने. This would be your answer. I hope this is clear. I'm going to show you the solution of this. See, now this is the solution. You can leave it up till here और open भी कर सकते हैं bracket. That would be your solution. ठीक है जी. I hope this is clear. Screenshot ले लीजिएगा. Okay, now these two parts were also left. Firstly, I'll be doing 13th one, this one. Again, you can see cos, acha, what am I going to do firstly? I'll be taking minus common from the numerator. Then it would become 1 minus cos 2x. अब ये जाना पहचाना आपको लग रहा होगा 1 minus cos 2x है ना. In denominator में we have 1 plus cos 2x. You'll be thinking after taking minus common how this became this thing. Now look at the signs of the numerator. When I took minus common, this 1 was negative, it became positive. And this was positive, it became negative like this. ठीक है जी. Okay, now look at the numerator. यहाँ पे dx. Look at the numerator. 1 minus cos 2x. What is 1 minus cos 2x? पिछले लेक्चर में भी मैंने याद करवाया था. It is 2 sin square x. और डिनोमिनेटर में देखिए 1 plus cos 2x. What is it? 2 cos square x. So after a little simplification, minus ये बन गया tan square x dx. Okay, now how tan? यहाँ पे भी dx. साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर. ठीक हो क्या. नाउ व्हाट? क्या मेरे पास tan स्क्वायर का इंटेग्रल है? नो, देयर इज नो इंटेग्रल ऑफ tan स्क्वायर. बट या सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल हमें पता है विच इज tan x. ठीक है. सो व्हाट एम आई गोना डू? आई विल बी कन्वर्टिंग दिस tan स्क्वायर x इनटू secant square x minus 1 into dx. Now apply the integral separately. It would be integral of secant square x dx minus minus plus integral of 1 dx. Let's check out our answers. So the answer of minus secant square x dx यहाँ पे लिखते हैं. What would that be? It would be minus, formula आपको अच्छे से learn होने चाहिए by the way. It would be minus tan x plus, what is integral of 1? It is x plus c. This is your answer. ठीक है, of 13th part. I hope this is clear. Okay, now let's talk about 14th part. ये तो बहुत ही आसान है. अभी जो हमारा tan बना था उसी को tan स्क्वायर है, डायरेक्ट इसका नहीं होता कुछ भी, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस रिलेशन से. यू पीपल शुड रिमेंबर 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी है ना ये सीकेंट स्क्वायर x के. सो अब अगर मुझे सीकेंट स्क्वायर tan स्क्वायर x की वैल्यू पुट करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है विद सीकेंट स्क्वायर, व्हाट एम आई गोना डू? आई विल बी कीपिंग दिस हियर और 1 को उधर ले जाएंगे. सो दिस वुड बिकम सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x. सो वही किया, क्या किया कि tan स्क्वायर की जगह लिख रहे हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया. तो ये बिल्कुल वैसा ही है. आपने सेपरेट किया इंटेग्रल ऑफ 1 dx और यहाँ पे भी dx. व्हाट इज इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x? इट इज़ tan x माइनस व्हाट इज इंटेग्रल ऑफ 1 dx? इट इज़ x प्लस c. दिस इज़ द आंसर. ठीक है जी, दैट्स इट. लेट मी शो यू द सोल्यूशन.
यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ये 13th पार्ट है आपका, एंड नाउ दिस इज़ योर 14th पार्ट। आई होप नाउ देयर इज़ नो कन्फ्यूजन लेफ्ट, राइट? Okay, now let's talk about substitution method. I have written here, two parts of exercise 3.2, question number 2, 8th part, and question number 2, 11th part. Why have I written these part here? Because, I'm going to show you that these two parts can also be solved, can also be simplified by using substitution method, So, what is substitution method basically? ज़ाहिर है, नाम से ही क्लियर है, वी विल बी सब्सटीट्यूटिंग समथिंग। हम किसी की जगह किसी और वेरिएबल को सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है? कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस क्वेश्चन फर्स्टली, द फर्स्ट वन, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है मल्टीप्लाइड बाय 1/x dx। अगर आपको याद हो, हमने क्या किया था कि इसके साथ हमने फर्स्ट रूल यूज़ करते हुए इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमने इसकी पावर में, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर जो कि 1 है, इसमें हमने 1 ऐड भी किया था, उसी से डिवाइड भी किया था। बट राइट नाउ व्हाट इज़ इट, I'm going to make you do this question, the same question by substitution method, ताकि आपको substitution method भी clear हो। कैसे करेंगे? आप सब्सटीट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव या पास में मौजूद हो या उसके ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो, ठीक है? उस फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, उस फंक्शन को यू विल बी टेकिंग एज टी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम गोना से, ओके, लेट, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे भी कि पूरे को लेना है या उसमें से किसी पार्ट को लेना है। तो लेट या टेक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो मैं इसको लूँगी, लेट दिस बी इक्वल्स टू टी। ये आपकी अपनी मर्जी है किस वेरिएबल के इक्वल है। सो लेट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू टी। नाउ लेट मी चेंज द कलर। अब मैं क्या लूँगी दोनों साइड्स पे, बिकॉज अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को टी में अब कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, देन इट मीन्स ये वाला भी किसी न किसी और चीज़ की जगह आएगी, इसकी जगह भी कोई और चीज़ ही आएगी, टी की ज़बान में कुछ आएगा, सो व्हाट एम आई गोना डू, आई विल बी टेकिंग डिफरेंशियल ओवर हियर ऑन बोथ साइड्स। अब डिफरेंशियल कैसे लेते थे, अगर आपको याद हो, हम लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। कैसे? डी जो लेते थे हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और डी हम लेंगे टी का। अब डी हम कैसे लेते थे, लेट मी शो यू। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वैसे क्या होता है, 1/x इनटू, हमें पता है डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि वो जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है उसका भी डी के साथ, सो इट वुड बी dx इक्वल्स टू, दिस इज इक्वालिटी साइन बाय द वे, dt ही है तो ये dt ही रहेगा। व्हाट डज इट मीन नाउ? इट मीन्स जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, लाइक से दिस वन, इसमें यू विल बी रिप्लेसिंग दिस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स विद t from here and 1/x into dx would be replaced, ये वाली जो चीज़ है इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे, dt। लेट्स चेक इट आउट। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, t, और इस पूरे की जगह मेरी वैल्यू अभी क्या आई थी, dt। नाउ द क्वेश्चन बिकेम सो सिंपल, यू कैन सी t का डेरिवेटिव जो कि होता है 1 साथ मौजूद है, सो इट वुड बी फर्स्ट रूल के तहत 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + c। The answer is t square by 2 plus c, but the question was in x, तो हम वापस t को हमने क्या लिया था, t हमने क्या लेट किया था, इट वाज नेचुरल लॉग ऑफ x, तो t की जगह आप वापस वही वैल्यू पुट कर देंगे। ना यू विल बी थिंकिंग कि मैम वो वाला मेथड तो ज़्यादा इजी है, एक ही मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। इफ़ दे वुड नॉट बी आस्किंग यू टू डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की, बट देयर वुड बी सम क्वेश्चंस जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बगैर नहीं हो सकेंगे। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड की इंपॉर्टेंस उन क्वेश्चंस के लिए है। उसके अलावा अगर आपको मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको पूछा नहीं गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। देखिए फिर से, आई टोल्ड यू पीपल, जिसका डेरिवेटिव गिवन हो, अब ये डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं, डेफिनेटली इसी का डेरिवेटिव ऊपर कहीं बन रहा होगा, कैसे, ठीक है? तो मैं इसी को लूँगी t के इक्वल, लेट ax² प्लस bx प्लस सी बी इक्वल्स टू t। अब मैं दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल लूँगी, मतलब d ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी, और इधर भी डिफरेंशियल लूँगी, इट वुड बी dt। डिफरेंशियल का क्या मतलब था, यानी डेरिवेटिव जिस तरह हम करते थे वो तो लेंगे, लेकिन अगर x यूज़ हुआ है तो भी हम dx साथ में लिखेंगे, और अगर y यूज़ हुआ है तो dy, t यूज़ हुआ है तो dt, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह। सो लेट्स डू इट नाउ। इट्स डेरिवेटिव इज़ 2ax इंटू डी एक्स प्लस bx का डेरिवेटिव होता है b इंटू डी एक्स, और c कॉन्स्टेंट है तो वो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू dt। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ कॉमन हियर,
On left hand side we can see this is dx, this is also dx, और ये तो वैसे ही 0 है. तो after taking dx common I got 2ax plus b. okay, यहाँ फिर मैंने मिस्टेक की है. this is 2b by the way, this is 2b, this is 2, so this would be 2b plus 2b. okay, now equals to dt. अब dx मैंने कॉमन ले लिया, 2ax plus 2b. 2 भी कॉमन है तो 2 भी कॉमन लेके मेरे पास क्या बनेगा, 2b और 2 एंड dx कॉमन मैंने जब ले लिया तो इनसाइड आई गॉट ax प्लस b इंटू dx मैंने बाहर लिख लिया, इज इक्वल टू dt. अब मुझे बताएं, डू यू हैव दिस थिंग, दिस होल थिंग? यस, जहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन करनी है वहाँ पे मेरे पास ये चीज़ तो मौजूद है, ये वाली. What don't I have there? This 2. So what am I going to do? I'll be taking this 2 to the other side. ये बन जाएगा dx ax plus b equals to 1 divided by 2 into dt. ये चीज़, यानी इसकी जगह अब हम क्या पुट करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, चूँकि मैंने उसको लेट किया था t, उसकी जगह मैं t रिप्लेस करूँगी और न्यूमिनेटर की जगह पे I will be replacing this whole thing. Clear? Let's do it. क्या कहा मैंने, न्यूमिनेटर की जगह आप पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी और डिनोमिनेटर की जगह हमने पुट कर दिया t. नाउ लेट्स सॉल्व इट फर्दर मोर. 1 बाई 2 डी टी डिवाइडेड बाई टी. अब t का डेरिवेटिव क्या होता है, वी ऑल नो t, डेरिवेटिव ऑफ t इज़ विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1. तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सो इट वुड बी 1 बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c. ठीक है, अब नेचुरल लॉग ऑफ t आ गया. t वैल्यू किसके इक्वल ली थी मैंने, इसके इक्वल ली थी. इसको वापस आप अपने इसी क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, दैट वुड बी योर फाइनल आंसर. और अगर याद है हमने इसको वैसे मेथड से क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमने नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ले लिया था, दैट वाज आवर आंसर. ठीक है, इसी की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं. ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 के बाय ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है. सो ये मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाने के लिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर रही हूँ, आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं. ठीक है, एंड आई हैव नॉट एडेड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आई थिंक, yes, I haven't added it. If you'll be needing it, do ask me, I'll be sending it to you. Okay, firstly इसको देखते हैं, ये ज़्यादा आसान है. फिर से वही बात, t किसको लेना है, यानी या u या कोई भी वेरिएबल किसको लेना है. यहाँ पे भी मैं किसको लूँगी, अपने डिनोमिनेटर को लूँगी. डिनोमिनेटर को क्यों लूँगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है. जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा ऊपर या साथ में, उसको हम t लिया करेंगे, उसको हम लेट करेंगे. तो अब देखिए, मैंने कहा e रेज़ टू द पावर 3 लेट दिस बी इक्वल्स टू t. अब मैं दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल लूँगी, इधर भी लूँगी इधर भी लूँगी, तो इट वुड बी d ऑफ e रेज़ टू द पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू d ऑफ t. नाउ लुक एट दिस साइड, क्या बन गया, d ऑफ e रेज़ टू द पावर x. वी ऑल नो कि जो e रेज़ टू द पावर x है, इसका डिफरेंशियल हो या डेरिवेटिव हो, वो एज इट इज़ ही होता है, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि डिफरेंशियल है तो इट वुड बिकम dx प्लस दिस डिफरेंशियल ऑफ 3 यानी डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू dt. क्लियर. अब मेरे पास क्या, बिकॉज इसमें मैं ये तो t पुट कर दूंगी, डिनोमिनेटर में तो मैंने t पुट कर दिया इंटेग्रल, बट जो न्यूमिनेटर में x यूज़ हुआ हुआ है मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको t की ज़बान में कन्वर्ट करना है अगेन. तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास क्या चीज़ आ रही है इसमें, e रेज़ टू द पावर x इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, वी कैन सी dt के इक्वल आ रहा है. येस, सो अब मैं इस न्यूमिनेटर की जगह पे यहाँ क्या पुट कर दूँगी, dt. नाउ अगेन लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, t का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सो इट वुड बिकम नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस सी. सो इट वुड बिकम नेचुरल लॉग ऑफ t की जगह आप क्या लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में जो है, व्हाट इज दैट, e रेज़ टू द पावर x प्लस 3 प्लस सी. वाई डिनोमिनेटर में क्या, क्यों मैंने कहा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की तरफ सॉरी आप नहीं देखेंगे, आप देखेंगे t आपने क्या लिया था, t हमने लिया था e रेज़ टू द पावर x प्लस 3, तो वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एंड दिस इज योर आंसर. क्लियर. लुक एट द नेक्स्ट वन, दिस वन. यहाँ पे देखें 1 ओवर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x. अब मुझे पता है कि जो नेचुरल लॉग ऑफ x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x. ऐसा ही है ना, 1 ओवर x. तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, इस क्वेश्चन को, कैन आई राइट इट एज 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये जो 1 ओवर x है क्या मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क पड़ा? आई होप देयर इज़ नो डिफरेंस. 1 ओवर x अगर मैं चाहे मैं न्यूमिनेटर में लिखूँ 1 डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स, ये 1 ओवर x था. अब मैंने इसको इस तरह लिख लिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, फिर से वही चीज़ बन जाएगी.
ऐसा ही है. नाउ व्हाट एम आई गोना डू, आई विल बी सेइंग ओके लेट, फिर से वही नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को मैंने ले लिया t, डिफरेंशियल ले लें दोनों साइड्स पे, इधर भी डिफरेंशियल ले लिया, इधर भी डिफरेंशियल ले लिया. दिस साइड वुड बिकम 1/x इंटू dx एंड दिस साइड वुड बिकम dt. अब मुझे बताएं, अगर मैं न्यूमिनेटर में सब्सटीट्यूशन, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, मैं इस क्वेश्चन को t में चेंज करने लगी हूँ. सो व्हाट वुड आई बी डूइंग, डिनोमिनेटर में जो था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, आई रिप्लेस्ड इट विद t. क्लियर, ये यहाँ से जो मैंने लेट किया था वो तो हो गया. न्यूमिनेटर में है 1/x इंटू डी एक्स, उसको मैंने किससे रिप्लेस करना है, dt से. सो ये dt से रिप्लेस हो गया. नाउ व्हाट, अगेन बिल्कुल पिछले इस क्वेश्चन की तरह, इट वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c. अब t की जगह मैं वापस क्या पुट करूँगी, ये मस्ट है वरना मार्क्स कटेंगे. t मैंने क्या लिया था, नेचुरल लॉग ऑफ x, सो इट वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c. दिस वुड बी योर आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, सो आई विल बी टॉकिंग शोइंग यू द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. सो सी यू देन.